Introduce yourself. My name is Ishwar Singh Sarawat. I am from Limbodi, Indore. My name is Ajay Chavan. Basically, I am from Pachor, but currently I live in Indore. I learn data science plus Python course from Siva Concept Solutions, Indore. Okay. Good evening, sir. My name is Hemant Trivela. Basically, I am from Pachor, sir. I am currently living in Indore, Limbodi, and I am preparation in Siva Concept Solution, Data Science, Python. Okay. Introduce. Good evening, sir. Myself, Aarti. I am from Bihar, but now I am in Indore, New Plasia. I have done my MTech from DAV, Indore. Now I am learning data science Okay. from here, Siva Concept. Okay. Introduce. Good evening, sir. My name is Rohit Parmar. I am from Pachor and currently Limbodi. I am learning data science by Siva Concept. Okay. Thank you. Okay, so this is the introduction part. Now I am asking some technical interview questions from you. Okay. Yes, sir. So first I am starting from first question of Python basic. Okay. What is operator concept in Python? How to define operator? Sir, operators calculation को sorry sir. You tell. Sir, we are using operators for arithmetical calculation. Like there are the many operators like logical operators, arithmetic operators, and or operators is in the category of logical operators, and arithmetic operators plus minus, and these are the arithmetic operations. We are doing it for calculation. Like for example, we have a there is the number is 5, and we have a B, there is the 6. Then we will use the arithmetic operator for addition. Okay. That is it. You tell Thank you, me. sir. What is ternary operators? So, ternary operator. Yes. So, sorry, Sanjay. You tell. So ternary operators are used in one line way. For example, sir, we can use lambda functions. If the sign of ternary operators are, sir, questions mark and colons, we use lambda function. When we use if colon, then we use ternary operators. You say what is ternary operators? So ternary operators we are used like there is one programs like added two numbers जैसे print a equal to 5 and b equal to 6 and printed adding two number comma a plus b. There is Okay. Actually, this is a practice interview session. Okay. Then I am answering also what questions I have asked you. The first question is that what is operators? Okay. So you are telling the type of operators. Okay. So you should tell me what is the definition of operators. You can simply say that it is used to perform operations using operands. Okay. That is the definition of operators. Okay. In case of what is ternary operators, then you can simply say that it is the operators that is used to solve condition based problem using single line statement. ठीक है, मतलब टर्नरी ऑपरेटर्स का जो आपने आंसर दिया है उसका आंसर आपको ऐसा देना है कि टर्नरी ऑपरेटर एक ऑपरेटर होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन में सॉल्व करता है. अब आपने उसको बता दिया कि इसमें लेमडा मेथड की तरह होता है, तो लेमडा मेथड इज द डिफरेंट थिंग, टर्नरी ऑपरेटर इज द डिफरेंट थिंग. ठीक है. और यदि आपको देखो कम्युनिकेशन मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं आपका टेक्निकल स्किल चेक कर रहा हूँ, तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है. ठीक है. आप ट्राई करिए इंग्लिश में बोलने का, पर यदि इंग्लिश में आप बोलने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ यदि आप बता रहे हैं तो वो गलत है ना. तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको टेक्निकल इंटरव्यू है ये. ठीक है. और नॉर्थ इंडियन सेक्टर में आपको हिंदी में भी बोल सकते हो. साउथ में मजबूरी होती है कि उनको आते ही नहीं है तो कैसे समझेंगे, पर यहाँ पर आप बोल सकते हो. जैसे इंदौर में यदि इंटरव्यू है तो आप बोल सकते हो, पर ट्राई यही करिएगा आप इंग्लिश में बोलिए, पर यदि नहीं बन रहा है तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं. ठीक है. तो टर्नरी ऑपरेटर्स आपको इस तरीके से डिफाइन करना है. तो मैं हर प्रश्न का उत्तर भी आपको बताऊंगा. ठीक है. मतलब ये इंटरव्यू नहीं है, दिस इज अ इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन है ये. ठीक है. तो इसलिए पहले आप अपने दिमाग में जो इंटरव्यू फोबिया होता है ना वो पहले निकाल दीजिए. इंटरव्यू का कोई जो डर रहता है वो निकाल दीजिए, क्योंकि ये डिस्कशन है.
ठीक है, इसमें मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप उसका उत्तर यदि दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर से अपन स्टार्ट करते हैं। नया क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल, सॉरी आई एम आस्किंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, Okay, and operator and or operator. So what is the difference between and operator and or operator? एंड इज एडिंग, और इज मल्टीप्लाइंग. Internally and is used adding, but you are just telling opposite. You tell what is logical operators and tell me the type and explain it. Sir, two type of logical operator, and or operator. And operator is used where the both conditions are true. We can use and operators. And or operator are used where any one conditions are true, then Or operators will be used. Okay, that is the answer. If both conditions are true, then and operators return true value. True. Both are all condition. All. Means you can compare and to all. If any one condition will true, then we will use or operators. Okay, that is the working. Okay, where we prefer and or operators. In which type of programs we will use and operators and or operators? सर एंड किसी भी अपन को प्लस करते हैं ना, उसमें यूज़ होता है सर, और ऑपरेटर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने में यूज़ होता है. गलत, सॉरी सर. You tell. Sir, AND operators, first for OR operators, we can say that for the office timing, we can use the OR operators. Let's suppose कि we have given a timing कि तुम 6 बजे के बाद आओगे या 9 बजे से पहले को हम लोग एक वर्किंग आवर्स रखते हैं. तो we will use the OR operators कि 6 बजे के बाद या 9 बजे से पहले. That will be the non-working hour. Okay. There we will use the OR operators. Okay. And for AND operators, like कि जब सभी आ जाए तो क्या होगा कि ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा. लाइक वी हैव 4 स्टाफ्स और 4 ऑफिस कि दिस विल बी कम, देन ऑफिस विल बी ओपन. All will be come, then office will be started. हाँ, all will be come, then If only office one will- person can be come, then office will be started. That is the OR operators. Yes. Okay, correct. Yes. But you can define this way that you can simply say that, okay, in conditional based program there where is- we implement condition based on combination of statement or combination of conditions, then we will use and operators and or operators. So simply you can say that if else, okay, in case of if else statement, we are preferring and operators and or operators, okay, because it return boolean value, okay, and boolean operators is mostly preferred on if else or loop statement. ओके, तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर इफ एल्स में यूज होते हैं या कि कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज, वहां पर यूज होते हैं. मेरा क्वेश्चन यही था कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर कहाँ पर है. जैसे इंटरव्यू में भी यही होता है आपके साथ. देखिए, जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन वो कुछ और पूछता है और आंसर आप कुछ उससे मिलता जुलता बोलते हो. जैसे मैं आपको बोलूंगा आप कौन हो, आप बताओगे मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. तो आपसे भी पूछा गया कि आप कौन है, तो आपको अपने बारे में बताना है. ऐसे मैंने बोला कि जो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर कहां पर यूज किए जाते हैं, तो आपको इसका आंसर सीधा सीधा ये देना था कि ये इफ एल्स बेस्ड कंडीशन स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं. ठीक है, जहां पर ग्रुप ऑफ कंडीशंस को सॉल्व करना होता है. ठीक है, यूज है. व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स सर, उसको हम किसी भी आइडेंटिटी किसी फॉर्मूले में उसका यूज़ करते हैं. ओके, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. You can tell me the name of identity operators in Python. Sir, sorry sir. You don't know. You tell. What is identity operators? Do you know about it? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स लाइक किसी भी चीज़ को अपन जैसे नाम पता है आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर का? नो सर, सॉरी. यूज है. Sir, equal to, greater than, less than. Equal to, greater than, less than, this is the relational or conditional operators na? Equal to is the comparison operators. I am asking identity operators. Identical operators also it is saying. Sir, वो not. नो सर, सॉरी. not operators.
Not operator is not identity. Is operators and is not. Yes, sir. Is and is not. Yeah, tell me what is and is not. Don't know, sir. ठीक है, दिस इज आल्सो द पॉजिटिव माइंड सेटअप. ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कितना पॉजिटिव माइंड सेटअप. मैंने बोला इज और इज नॉट, आप सब लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आ रहा हो. ठीक है, तो ये मेंटेलिटी भी आपको थोड़ा चेंज करना रहेगा. ठीक है, यदि कोई भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको नहीं आता है तो आप उसके लिए सीधे बोलोगे नहीं आता है, और यदि आपको आता है तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करिए. ठीक है, ये भी एक फैक्ट होता है, इससे आपकी ऑनेस्टी चेक होती है. ठीक है, जैसे आपको यदि नहीं आता है आप डायरेक्टली बोलोगे नहीं आता है. ठीक है, इज और इज ऑपरेटर का यूज़ कहाँ पर होता है? एड्रेस कंपैरिजन के लिए होता है. जैसे मान लीजिए आपके पास दो लिस्ट है या दो टपल है. ठीक है, दोनों लिस्ट के अंदर के एड्रेस यदि इक्वल है तो इज ऑपरेटर क्या बताएगा? इक्वल बताएगा. अदरवाइज क्या बताएगा? नॉट इक्वल. तो इफ वी वांट टू कंपेयर द रेफरेंसेस देन वी विल यूज इज ऑपरेटर्स इन पाइथन. Okay, if we want to compare the value then we will use equal operators. So that is the difference. Okay, is and is not, both operators can be used as a identity operators. Okay, now the next question from you, what is interpreter? Sir, basically sir, interpreter consists of two things. First one compiler, second one is PVM. So PVM stands for Python Virtual Machine. It is an environment. Firstly we can provide source code to compiler, it convert into bytes codes, then it goes to PVM that convert our source byte code to machine program, And finally this code will be sent to the operating system. Yes. And operating system execute the result. Result. Okay, so means interpreter, I am asking about what is interpreter? Okay sir. So interpreter is, it convert high level language, it convert machine so it convert high level language to sorry sir. So interpreter convert, इंटरप्रेटर क्या होता है? सर इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को, बाइट कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है. इंटरप्रेटर होता क्या है? सर वही इंटरप्रेटर जैसे कि कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर, कंपाइलर कन्वर्ट करता है. कन्वर्जन का काम किसका है? कंपाइलर कर. इंटरप्रेटर क्या है? सर वो कन्वर्ट करता है. तो कंपाइलर भी कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट करता है, तो दो कन्वर्टर क्यों लगाए? एक से ही काम हो जाता है. आप बताइए. सर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन. इंटरप्रेटर इज यूज्ड टू रीड द प्रोग्राम कोड line by line. First line you are writing, that code will be read by the interpreter and load into the PVM. Okay, and PVM will process this code. Okay, the reading purpose means interpreter is mainly used to read the code line by line. That is the actual work of interpreter. Yes. Okay, you tell. Python support data type. Sir, Python support data types. So integer, float, character. You can write data type in Python code manually. Integer. Python कोड में आप डेटा टाइप मैनुअली लिख सकते हैं. डेटा टाइप्स जी सर. कहाँ पे मैनुअली लिखते हैं? नहीं लिख सकते सर, वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है. यह इंटीजर है, यह फ्लोट है. ऐसा डिफाइन करना पड़ता है हमें? जी सर. मतलब इंटीजर लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता? इंट लिखना पड़ता है सर. इंट a बराबर 10 ऐसा लिखना पड़ता है पाइथन में. आपने पाइथन सीखा कि सी सीखा है? इंट a बराबर 10 आपने लिखा है कभी? नहीं सर, ये डायरेक्ट होता है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं तो होता हम है. वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि आप ये बताइए कि पाइथन में डेटा टाइप सपोर्ट होता भी है कि नहीं होता? डेटा टाइप सपोर्ट नहीं होता है सर. आप बताइए. सर इसमें इनबिल्ट होता है पाइथन इनबिल्ट में. होता है पाइथन में. डेटा टाइप होता है पर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली क्या होता है? मैनेज होता है. यस. यू टेल व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल सर जैसे कि इट इज सेल वो इल्स, ये चीज़ें सब वेरिएबल होती है किसी भी चीज़ को सर. जैसे कि इल्स है, अगर अपन जो कर रहे हैं सर, सॉरी सर, वेरिएबल देखो अब ये इंटरव्यूज इनको वेरिएबल आता है, मुझे ही पता है कि आता होगा पर ये बोल नहीं पा रहे हैं. इसका रीजन पता है क्या है? ये इंटरव्यू का सबसे बड़ा ये इंटरव्यू फोबिया है आपके अंदर. घबरा रहे हो आप, आपके अंदर वो चीज़ आ रही है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ कैसे याद होगी पता है? जब आप उस चीज़ को समझोगे. आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है. जैसे आपके एग्जाम्पल में आ चाहिए a बराबर 10, तो आपके दिमाग में अच्छा a यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या करता है? आप बताइए वेरिएबल क्या है? So we can store data in the form of variable. For example, int a मतलब a equal to 10. So 10 is our variable sir. 10 is the No, variable. sir. A is our variable. a is our data variable. sir. ठीक है, ये भी मिस्टेक है. देखो 10 is जैसे our इन्होंने data, 10 इज sir. अवर वेरिएबल बोल दिया उन्होंने. ये रीजन क्या है? ये भी घबराहट है. तो यहाँ पर आपको ये बोलना है a एक वेरिएबल है जो 10 मतलब वेरिएबल इज यूज्ड टू कंटेन द
Data. Store the data. Store the data, contain the data, point the data. That thing you can say that. If you are creating any program, then we will take variable, and the second nature of variable you should also answer. The variable value and type both can be changed in Python. Okay, Python is only one programming language that contain two behavior under the variable. That we can override the value, and second one is we can change the type also. Okay, you can change the data type also. Okay, both features Python implemented under the variable. Okay, you say what is tuple? टपल सर, टपल वो है जो स्मॉल ब्रैकेट से शो होता है और ये कन्वर्ट भी हो जाता है लिस्ट में। कन्वर्ट भी हो जाता है। टपल होता क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि टपल क्या होता है? सर टपल में एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं अपन, जैसे OTP आती है वो एग्जैक्ट रहती है, सॉरी सर रेंडम होती है वो, तो एग्जैक्ट जैसे अपने आइडेंटिटी, अपने बैंक अकाउंट, दिस इज ए टपल। ओके, यू से व्हाट इज टपल? सर टपल इम्यूटेबल होता है जिसे हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्मॉल ब्रैकेट से शो होता है। और सही डेफिनेशन ऑफ टपल इज द one type of data type in Python programming language, okay, whose value can't be changed dynamically, means it is a immutable object. You can simply say that it is a immutable object. Tuple एक immutable object है जिसकी वैल्यू हम डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा आपको डेफिनेशन बताना है। ठीक है, तो मतलब वो चीज़ एकाएक जो आपको याद नहीं आ रही ना, उसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ यदि एकाएक नहीं याद आ रही है, उसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ उस चीज़ को एक बार देखा है। आप यदि किसी चीज़ को एक बार देखेंगे ना, तो वो चीज़ आपको ऐसे ही याद रहेगी। जब आप उस चीज़ को 10 बार करेंगे, आप किसी भी चीज़ को यदि आपको याद रखना है ना, तब आप उस चीज़ को 10 बार लिख लीजिए अच्छे से, और लिख करके 10 बार आप उसको पढ़ लीजिए, और हफ्ते में एक आध बार उसको और पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो चीज़ें जल्दी भूलती भी है। कुछ चीज़ें तो क्या रहता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग में हर चीज़ समझना होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी रखना पड़ता है। अब जैसे टपल है, हालांकि आपको यदि समझोगे तो जैसे आपने समझा है तो आपने इतना कुछ बता दिया, लेकिन जब आपको एज ए डेफिनेशन आपको फ्लुएंटली वो चीज़ तभी निकलेगी जब आप उसका डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में सामने वाला इतना समय नहीं देता, वो आपके अंदर का बिहेवियर क्या है, अभी इसके अंदर मशीन लर्निंग नहीं है, AI आपके अंदर इंस्टॉल नहीं है कि आपके अंदर का बिहेवियर पता चल जाए। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही इंप्लीमेंट होगा। तो ये चीज़ आप सुधारिए। जैसे अभी आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरव्यू देने से आपको समझ में आ रहा है ना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब यही चीज़ आप कंपनी में जाकर के यदि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे, लाइव इंटरव्यू जब होगा और ऐसा यदि आप बिहेवियर उसको शो करोगे, तो ऐसे तो 8-10 इंटरव्यू तो ऐसे ही आपके चले जाएंगे। ठीक है, पता चला कोई बहुत अच्छी कंपनी है और जहाँ पर आपको आता भी है और आप इंटरव्यू फोबिया के चक्कर में नहीं बोल पा रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज 90% बच्चों के साथ ये होता है। कॉलेज में कंपनी आती है, वहाँ पर कॉलेज वाले तो हम तो बता रहे हो, मैं तो खुद रिक्रूटमेंट में गया हूँ, हम लोग तो लास्ट में कोई नहीं मिलता है ना, तो फिर हम लोग ऐसा कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो यार अब कम से कम कुछ को तो लेके जाना है, 4-5 को, क्योंकि हमारा भी टारगेट कम से कम 4 को तो लेके चले जाएं। कॉलेज का TPO तो फिर हमें लेना पड़ता है, क्योंकि आता है, पर सबसे मेन दिक्कत ये होती है कि उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो आप। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आता है, मुझे पता है, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया, पर जैसा एग्जैक्टली चाहिए वैसा आपने नहीं किया। तो उस चीज़ को आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार इंटरव्यूज लूंगा। ठीक है, ऐसे आप देखो, अब आप खुद को इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे आप अभी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपके अंदर जो लिमिटेशंस थे वो लिमिटेशंस आप क्या करिए, सॉल्व करिए। जब आप सेकंड टाइम इंटरव्यूज देंगे तो वो लिमिटेशंस आपके खत्म हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। और जब तीसरी बार दोगे, चौथी बार दोगे, 5वीं बार दोगे, यदि आपको देखना है किसी भी कोई यूट्यूबर का ही देख लो, चलो ठीक है, मेरा ही वीडियो आप देख लो। जब मैं पहली बार कोई वीडियो शूट किया था तो मेरे अंदर भी क्या था, एक फोबिया था, एक डर था कि मैं पब्लिकली बोलूंगा तो लोग देखेंगे तो कैसा फील होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता गया, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आता गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया। वैसा आपके अंदर, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, इसको डिसएडवांटेज मत लो, इसको आप एडवांटेज में लो और इस चीज को प्रिपेयर करो। ऑटोमेटिकली आप 4-5 इंटरव्यू दोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो जो चीज नहीं भी आती है ना, वो भी आने लग जाती है। यही पावर है कॉन्फिडेंस का। ठीक है, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट इंटरव्यू में ऐसा होप कर रहा हूँ कि आपका अच्छा हो। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, ये चीजें आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम में सभी का ऐसा ही होता है। कम से कम कुछ तो बोला सर सिलेक्शन लाइक है कुछ के